इनकी बात मानो, इनकी बात मानो। दोनों अभी यहाँ पे फोटो भी हो ना। All right. Hi. Okay. What do you have to say about this film, Kajal? So I was just saying, Kajal is especially about everyday girl. It's about not the winners and the gold medalists and the tennis player and the corporate owners. This is about me and her. Okay, You know. okay, can you just give us a minute? I think he's there, Vishal Radha. Okay, I'll just Yeah. Vishal sir is Yeah, there. we'll, I'll we'll, just we'll do this later. All of you. Sir, look here. Look center. Your right side, you know. हो गया एक्साइटेड। How sweet are you? Thank you. क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? See, Kajal for me was a very exciting project. I just decided that I don't want to act anymore, and I was exploring other things than just writing, because writing I feel is a very, very lonely job. So I wanted to take the next step, and Kajal came as an idea. And I didn't want to make a film which was aggressively feminist. You know, I wanted to make something very real, something that happens to all of us. Like, you know, like I was just telling somebody else also that, you know, at home, if your mother likes a vegetable and nobody else does, chances she'll never cook it. You know, or the clothes that my husband doesn't like me to wear it, I won't wear it. And those little decisions, like when to have a baby, when not to have, how much more to study after education, what job to do, not to do. These are the simple questions that as a woman or as a girl, we are faced every day. So Kajal is a story about that person, the one who loses their voice in the name of being a good woman. You know, constantly, if you see in India now, we are constantly told to be a good daughter, a good wife, a good sister. And we keep losing our identity bit by bit. And I don't mean by we have to do marches or go burn, you know, bras to be feminist. No, feminism is as simple as being allowed to put makeup when you want to. You know, I know in Xavier's college, it's the most ridiculous thing I've ever heard. Girls are not allowed to wear red. What does that even mean? I'm appalled. And we take it every day. Girls are not allowed to wear jeans in colleges. So Kajal is about that smallness, which is such a big issue. ऑडियो क्यों नहीं आपने खुद को कास्ट किया इस फिल्म में? इतनी बारीकियां हैं आपके दिमाग में, हमें लोगों को ऑब्जर्व किया है। डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं आपको फिल्म का हिस्सा रहना चाहिए था? आप काजल का वो किरदार ज़्यादा प्ले करती तो ज़्यादा वो बात दिल से निकल। How sweet. One is I'm done with acting. I really don't enjoy acting and I'm a terrible actor. Okay. Second, Saloni is a fantastic actor. I was looking forward to working with her for the longest time. So when the idea of writing, you know, this whole concept came, I was very clear from the beginning that I want to work with her. And I really hope, you know, in future also I'll get to work with somebody like her. So dedicated. And when you'll see her in the film, you'll realize it's not her. You know? आपकी फिल्म में कितना आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा डाला है इस फिल्म में, जो आपने देखा है या फिर आपके साथ कभी घटित हुआ हो, आपने देखा हो लोगों को ऐसे करते हुए? Right. You know, very strangely, my mom is here. And while growing up, I didn't realize I was a girl. For me, I was a person. My father was a journalist, and he brought us up like that. My mom, lecturer, and NSD lecturer, that too. I never realized I was a woman, right? When I came to Bombay and got married also to a fantastic man. Like, we don't have things like ladki ka kaam, ladke ka kaam. We stay alone, you know. We don't stay with our parents and my in-laws. And my in-laws also never made me feel that I'm a woman.
I only lived through this bias is through my students. I'm an art of living teacher, and you won't believe how many of them come and tell me they're dying inside. And usually it's because they're not dying, they're just letting themselves go. They keep choosing not to listen to themselves. So, it's my students, film. Thank you. Thanks. आइए ना वॉर्म वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। जानना चाहेंगे कि जो काजल है जी कितनी आपको उसकी तरह है? और ठीक है, मैं बताती हूँ। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी काजल की तो मुझे 1-2 दिन लगे उसको ना, 2-3 बार मैंने पढ़ी थी स्क्रिप्ट, क्योंकि अननोइंगली इट्स वेरी सिमिलर टू मी। क्योंकि मैं काजल भी, लड़की का नाम काजल नहीं है। जब फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा काजल क्यों है फिल्म का नाम। जैसे मैं भी बाय नेचर कन्फ्रंटेशनल नहीं हूँ, मैं चीज़ों को होने देती हूँ। मतलब जैसे लोग मतलब अग्रेसिव होते हैं, मुझे उसमें कोई मज़ा नहीं आता। आई फील कि नेचुरली थिंग्स विल टेक इट्स कोर्स। तो काजल में भी ऐसी ही कहानी है, जो एक लड़की अपनी लाइफ जीती रहती है, उसके साथ जो हो रहा है वैसे होने देती है, और फिर बहुत टाइम हो जाता है जब वो रियलाइज़ करती है कि मैंने तो अपनी लाइफ जी ही नहीं, मैं तो मतलब कहाँ किस चीज़ों में फंस चुकी थी। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो इसलिए काजल को कनेक्ट करना मेरे लिए बहुत इंटरनल प्रोसेस था। तो कैसा रहा पाकी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैंने पाकी ने मुझे स्क्रिप्ट भेजा था जब मैं सिंगापुर में थी, फिल्म की शूट करी थी, और मैंने कभी भी फीमेल डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया था। तो स्क्रिप्ट लेवल पे तो आप बहुत चीज़ें पढ़ते हो, बट जब आप शूट पे जाते हो आप यू रियलाइज़ कि इट्स वेरी डिफरेंट वर्किंग विद अ फीमेल डायरेक्टर। आई डोंट नो, मे बी पाकी इज जस्ट लाइक दैट, दे आर वेरी सेंसिटिव एज डायरेक्टर्स। यू नो, विमेन आर वेरी सेंसिटिव फ्रेमिंग को लेके, एक्टर्स को लेके। मतलब शूट खत्म होने के बाद मैं पाकी को सिर्फ एक बोला कि मैंने कहा मैं तो ठीक है, मैं तो एक्टर हूँ, बट जो नॉन एक्टर्स भी थे सेट पे, मतलब शी हैज़ दैट गिफ्ट टू किसी से भी एक्टिंग निकालना, जो सबकी बस की बात नहीं होती। एक एक्टर को इनकरेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप शी हैज़ दैट नैक टू इनकरेज एक्टर्स टू टेक आउट वर्क फ्रॉम। इस फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है और आपने बिना चुप्पी के एक किरदार निभाया, तो कैसा रहा आपका? पहले जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने पाकी को फ़ोन करके बोला कि स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, मगर मेरी डायलॉग्स कहाँ हैं। तो पाकी ने बोला कि यही है स्क्रिप्ट। और बट मुझे फिर आई डिडंट फील द नीड ऑफ डायलॉग्स, क्योंकि एक दिन, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फिल्म मैंने बात नहीं की ज़्यादा, मैं चुप थी अपने इसमें थी। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप इतनी चीज़ें बोल देते हो बिना बोले, ज़रूरत नहीं होती इस सब चीज़ों को बोलना। क्योंकि आप दिन में कितनी टाइम अपने आप चाय बनाते हो, चीज़ें अपने आप करते हो, थोड़ी बातें करते हो कॉन्स्टेंटली। तो ये फिल्म वैसे टाइम पे भी कैप्चर की कि जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो, और बहुत चीज़ें आप बिना बोले भी बोल देते हो। और वही एक लड़की वो बोल नहीं रही है। नहीं, ऐसे तो फिल्म तो देखी नहीं है आपने, अभी देखी है तो आप ये बोल रहे हो, बट फिल्म तो किसी ने देखी नहीं है। बाहर देखी है, मतलब न्यूयॉर्क में देखी है, तो हमारी पहली स्क्रीनिंग है। नहीं, बोल नहीं रही, मतलब फिल्म वैसी नहीं, फिल्म आपके अंदर के वजूद की कहानी है। तो आप कितनी बार आप हमेशा थोड़ी चीज़ें बोलते हो, आप अंदर भी रखते हो कोई चीज़ें, तो वो वैसी कहानी है। ऐसे नहीं कि वो डेफ एंड डम है और म्यूट है। वो एक सिचुएशन है कि जिसमें वो ज़रूरत नहीं है उसे बोलने की, वो अपने अंदर लेती है चीज़ें। बहुत सी महिलाएं हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है डे टू डे लाइफ, जो भी थकान है, उनके सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाती है अपने बच्चों के प्रति, अपने पिता के प्रति या फिर अपने पति के प्रति। तो कहीं ना कहीं अपनी खुद की लाइफ को खो देती हाँ, है। वही। उसके ऊपर मतलब आपको क्या कहना? यही तो मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में यही बोला था कि आप जैसे मैं हूँ, जैसे आप भी होगी, जब एक कॉलेज में आप इतने एक्साइटेड होते हो कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, फिर जैसे फैमिली सिचुएशन होती है, या तो फादर या तो ब्रदर या तो बॉयफ्रेंड या तो हस्बैंड, मुझे लगता है सही लाइफ पार्टनर ढूंढना ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि आपकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी अगर पार्टनर सही नहीं मिला तो आप एज अ वुमन ना, या तो हमारी संस्कृति में ऐसे कि आप मतलब नो, आई डोंट यूज़ द वर्ड कॉम्प्रोमाइज, बट आप देते जाते हो अपने आपको, चलो ठीक है वो करते रहते हो, तो अपने आप को वो होता है ना, अपना वजूद थोड़ा थोड़ा खोते रहते हो। जैसे लाइक फॉर योर हस्बैंड, फॉर योर ब्रदर, फॉर योर फादर, थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया, इतना, और मैं तो जो मेरी ड्रीम्स और एस्पिरेशन है, मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूँ, मैं तो पूरी बदल गई हूँ। लाइक उन आइडेंटिटीज, हाँ, मतलब आपकी फुल आइडेंटिटी इज गॉन, और
लॉस्ट योर इनर सेंस, और फिर इट्स नॉट समबडी आउटसाइड, बट फिर आप अपने आप को यू स्टार्ट फीलिंग एम्प्टी, यू स्टार्ट फीलिंग कि क्या किया मैंने लाइफ में, कुछ नहीं किया। तो वो अपना अंदर का गुस्सा होता है, अपना अंदर का, और कोई आपको बाहर से आपको स्ट्रेंथ नहीं देता, आपको अंदर से ही ढूंढनी पड़ती है। और वो काजल ये कहानी है आपकी अंदर की स्ट्रेंथ की कहानी है। शूटिंग के कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ वाकई आप रो पड़े हो, जहाँ आपका दिल वाकई में चीख चीख के कह रहा है, इमोशनल हो गई, वो आपको मोमेंट मिलता है? ये पूरी फिल्म मेरे लिए बहुत इमोशनल थी। पहले आई थिंक पहले दिन तो मैंने सिर्फ सेट पे थी, ऑब्जर्व करी थी कि मेरा किरदार बाकी किरदारों से बहुत अलग है, तो मुझे अपनी अलग मैंने जोन बनाई हुई थी अपनी। बट बहुत आप फिल्म देखोगे तो मतलब वो प्रोसेस ही ऐसा है कि जो आई थिंक जो लास्ट डे था शूट का, वाज अ वेरी, मतलब वी वर शूटिंग सुबह से रात तक, एंड इट वाज अ टफ डे ऑफ शूट इमोशनली ऑल्सो फॉर द सीन। आई थिंक दैट वाज द डे कि आई विद द फिल्म एंडिंग आई फेल्ट कि मेरी एक पर्सनल जर्नी शुरू हुई थी फिल्म के बाद। एज आई रियली फेल्ट कि मेरे लिए कुछ अंदर चेंज हुआ एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन विद दिस फिल्म। या थैंक यू। हो गया, रोल हो गया सबका जी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, और ये मैं इस फॉर्मेलिटी में नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्योंकि यहाँ आया हूँ मैंने देखा है, जेन्युइनली बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है। और आई थिंक पाखी विल मेक ए वेरी गुड फिल्म मेकर, क्योंकि वो इतनी छोटी सी एक चीज़ को लेके और एक विमेन लिबरेशन की जो बात है, जो सिंबलिज्म है, जो मेटाफर है, जो स्टोरी टेलिंग है, बहुत ही छोटी सी बात है, पर उसको उतनी देर तक होल्ड करना उसके लिए आई थिंक बहुत ही खूबसूरत, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है फिल्म में। जब आप किसी स्टूडियो में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए जाते हैं, कितना इंट्रोवर्ट है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, बोल पाते हैं फिल्मों के बारे में, कितना पसंद आया, अगर मुझे बुरा भी लगता है तो उसके बारे में कितना बोल पाते हैं? मुझे जहाँ भी डर होता है कि फिल्म ख़राब होगी तो मैं जाता ही नहीं हूँ देखने के लिए। तो जहाँ मुझे ये एक एश्योरेंस होता है, और ये एक इस तरह की मुझे एक इंश्योरेंस थोड़ी सी अंदर रहती है कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा, तो मैं वहाँ देखने के लिए जाता हूँ। क्योंकि फिर झूठ बोलना पड़ा, एक्टिंग में एक्टर नहीं हूँ तो एक्टिंग नहीं हो पाती, तो इसमें मुझे एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पाखी ने फिल्म बनाई। शायद क्योंकि आप बहुत मुख्तलिफ कामों में जाने जाते हैं, किसी भी मुद्दे पर बन जाए, समाज के हालात नहीं बदलते, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो समाज के फिल्म समाज के हालत बदलने के लिए नहीं बनती है, समाज में जो हो रहा है उसका आईना होती है फिल्म, सो उसका प्रतिबिंब होती है। तो सिनेमा से हम लोग फिल्म को, समाज को नहीं बदलना चाहते, समाज को उसका चेहरा दिखाना चाहते हैं कि ये समाज है, ये हम लोग हैं, और हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं। प्रेजेंट टाइम पे हम शॉर्ट फिल्मों का बहुत ही, हर कोई शॉर्ट फिल्म आपने देखी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपने कुछ कम कर दिया है शॉर्ट फिल्म? मैंने एक ही शॉर्ट फिल्म की थी बहुत साल पहले, वो बिल गेट्स फाउंडेशन के लिए, एड्स के ऊपर। बट उस वक्त क्योंकि शॉर्ट फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम था, और उसके लिए मीन्स नहीं थे उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, अभी तब यूट्यूब भी नहीं था, और ना ही इस तरह के छोटे कैमरास थे इतने सस्ते कि हर कोई, टेक्नोलॉजी महंगी थी उस वक्त। अब वो टेक्नोलॉजी बहुत इजी है और कोई भी फिल्म बना सकता है। मेरे बेटे ने 4 शॉर्ट फिल्म बना लिए हैं, तो बहुत इजी है फिल्म बनाना, और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने वेब सीरीज़ में भी जाते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स वेब सीरीज़ में जाते हैं, आपको इंटरेस्ट है? वेब सीरीज़ का फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फॉर्मेट है, और स्पेशली फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि हमें फिल्मों में सबसे पहले जो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है वो डिटेल कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, क्योंकि फिल्म 2 घंटे या 2.5 घंटे से ज़्यादा की, या 3 घंटे से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, जबकि सीरीज़ में वो बंदिश नहीं है। तो वो जो फिल्म मेकर्स को जो छोटी छोटी डिटेल्स लूज़ करनी पड़ती थी, वो वेब सीरीज़ में नहीं है, इसलिए वेब सीरीज़ फिल्म मेकर के लिए ऑफकोर्स मैं जाना चाहूँगा, बनाना चाहूँगा। Vishal sir, Deepika and Irfan in your next production, it's a dream cast. How excited are you for the film to go on floors? I am more excited for my friend Honey, जो कि मेरे साथ पिछले 20 सालों से मेरे साथ है, और उसकी पहली फिल्म में इतनी बढ़िया कास्ट होना, वो बहुत लकी है, और आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू प्रोड्यूस दिस फिल्म। You think Deepika will really do justice for the role, because it's a very, very author-backed, powerful role? I think Deepika is one of the finest actors we have, and the combination of actor and star.
सो ऐसा कॉम्बिनेशन कभी कभी आता है कि जहाँ पे एक सुपरस्टार हो और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टर हो, तो दीपिका इज़ वन ऑफ दैट. सो When is the film going on floors? it will go in January and it will go on floor. Thank you, Vishal ji. Thank you. Thank you. सॉरी मेरी बहुत समझ नहीं है कि मैं उतना ज़्यादा बोल सकूं, लेकिन जो मुझे अपनी छोटी सी समझ में जो समझ आया और वो अच्छा लगा कि जो एक वीक लड़की है और उसकी जो स्ट्रेंथ कैसे आती है जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट शी फाइंड्स, एंड वो हिडन रहती है बट उसके अंदर जो एकदम ताकत आती है कि वो हर उस चीज़ से जिससे उसे डर लगता है, कोई उसे एक अश्लील गाना गा के या उसे छेड़ रहा है वॉचमैन बिल्डिंग का, या उसके घर में आके जो उसके साथ एक बदतमीज़ी होती है, तो द मोमेंट शी फाइंड्स दैट यू नो दैट शी हैज़ दैट थिंग इन पर्स, तो वो जो डर है उसका सारे डर निकल जाते हैं. एंड इट गिव्स हर दैट हाई एंड दैट पावर, और एक्चुअली उस डर से उसे मुक्ति मिल जाती है. तो वो बहुत ही अच्छा थीम है ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए. आई एम नॉट सेइंग लाइक कि गन रखनी चाहिए या कुछ, बट इन जनरल लाइक हाउ इट मैटर्स व्हेन यू हैव समथिंग टू सपोर्ट यू. और उसमें जो किशोरी अमोनकर का भजन जिस तरह इस्तेमाल किया है वो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा. एंड पाखी आई एम रियली सरप्राइज्ड, एंड आई एम एक्चुअली नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज आई नो पाखी फॉर अ लॉन्ग टाइम since she's got married to Abbas, and I've been seeing her journey. पहले as an actor देखी and उसके बाद I know about her passion and her quest, और अंदर एक जो artistic restlessness होती है to find yourself and to find your calling. So I think she's finally she's found her calling. मेरी इतनी समझ नहीं है सच में, और मैं बड़े ले पर्सन की तरह देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी. सॉरी, बहुत अच्छा काम लगा क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है और उसके बावजूद यू नो जैसे मेकअप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया है, और शी इज़ लुक लाइक अ रेगुलर मिडिल क्लास गर्ल यू नो. सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इवन द अदर कैरेक्टर्स आर वेरी गुड, सब ने बहुत अच्छा काम किया है. अभी एक फिल्म में गाना आया मेरा, तो मैं कोशिश करती हूँ 2 लाइन मुझे याद है. तो 7 रंगों से दोस्ताना हुआ तो यूं हुआ, मैंने बोला जिंदगी आजा खेलेंगे हम ख्वाबों से का जुआ. ये डियर माया फिल्म का है गाना. पहले उत्सव का फोटो तो लास्ट टाइम थोड़ा थोड़ा राइट में तो थोड़ा पीछे. मैम राइट से स्टार्ट कीजिए. विशाल सर राइट से सेंटर. यहाँ पे हाँ. Thank you. Little excited.
together. I'm so glad you came. Priyanka Chopra's mom. Actually, she's my producer. Wrong introduction. I know, Correction. that's not fair. Cut. That's why I said कि Cut. Madhu ma'am, Madhu Chopra. Okay. अभी तो I'm wishing her all the best for her endeavors. मैं देखूंगी. Then I'll make the real comment. You know, I have never met a producer who's so hands-off. She doesn't ever interfere. She just supports more. I've met her first time and I'm so excited for Pauna क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है and I know it's a beautiful subject. So I'm excited. किसी भी आप स्क्रीन पे जाते हो कितना खुल के बोल पाते हैं फिल्म के बारे में कितना क्या वैसे मुझे ये तौर तरीके आते नहीं, मैं बिल्कुल खुल के ही बोलती हूँ, फ्रैंकली बोलती हूँ, फॉर बेटर एंड फॉर वर्स. पढ़ी है मुझे, चपेट भी पड़ी है कई बार. खुल के बोलने से हमारे कई रिलेशनशिप्स खराब हो गए, फिर जाके मिन्नतें करो, ऐसे हुआ है. बट इट इज़ मच बेटर कि आप फ्रैंक बात करें. वो नहीं, बड़ा मुश्किल है, वो करना भी गलत है. फिल्म का अपना तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है. फिल्म देखकर ही कमेंट करना चाहिए. आप इनको फिल्म देखने दीजिए ना, फिर इनकी बाइट लीजिए. हाँ. वुमेन ओरिएंटेड मेरी कौन? प्रियंका के ही है किसी और के? किसी के भी. देखिए, सबसे पहले तो मुझे खूबसूरत पसंद आया था रेखा जी का. वुमेन ओरिएंटेड ना कहूँगी, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उनका. हालांकि सपोर्ट सिस्टम भी पूरा था, बट दैट्स वेयर ही स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू वुमेन, जिनके कंधे पे फिल्म चल पड़ी. जितनी प्यारी प्रियंका मैम दिखती हैं उतनी प्यारी आप दिखती हैं, क्योंकि उनकी माँ है. और आप बिल्कुल है ना. ड्रेस जो पहना हुआ अपने कपड़े चुनती हैं या फिर डिजाइनर से कौन है मैम, कौन है? ज़्यादातर तो मैं खुद करती हूँ. प्रियंका का बस चले तो अपनी डिज़ाइनर लगा देती है मेरे लिए, पर ज़्यादातर मैं अपना करती हूँ. तो हम मान सकते हैं कि आपका फेवरेट कलर ब्लू है. ब्लू आपका फेवरेट कलर है? मेरा फेवरेट कलर रेड है. सुरख, बिल्कुल ब्लड रेड. किसी ने नहीं पहना.